Hi, Gavilia, how are you? I'm doing well. How are you? Thanks for asking, by Great, the way. great. Thank you so much. First of all, let's get to know about you first, right? Just tell me first about how you began your career. Where did you go to college? What are your backgrounds? What are your roots? And specifically, what are your exact experiences? I'm Kevalya, and I started a community called My Ivy Robotics to help people learn about robots, to help people build robots on their own. This is a very young community for now, but we're trying to build it more. Apart from that, I did my bachelor's in mechanical engineering, and then tried to switch my career into deep learning, artificial intelligence, and I did a lot of internships in deep learning sector itself. I'm more of a computer engineer than a mechanical engineer. It's just that the degree differs. I've worked with several robots throughout my college life and after my college as well. I'm still, until now, I was working as software engineering and web development, all the sectors. Basically, I am an engineer. That's a lovely answer instead, yeah. That's really amazing. Okay, so you told about your college, right? Okay, let's get to know more about your college. Like, how did your college play a very vital role in your career? Like, did it really help? कि सब कुछ आपने ही बस किया है आप ये बता दो पहले. वेल देखा जाए तो यू सी कॉलेज हमको क्या ही दे सकता है. कॉलेज इज नॉट सम प्लेस वेर यू गो टू लर्न समथिंग. आई फील दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन बाय द वे. इट्स नॉट टू बी ऑफेंडेड. यहाँ पे हम सीखने नहीं आते, हम यहाँ पे एक्सपोजर लेना आता है. You see, the reason why IITs are growing, why NITs are growing is because they have a really huge masses of really amazing people coming from all across the country, right? Or even world sometimes. So what are they getting what other private colleges not? It's just exposure, isn't it? What they are learning is exactly the syllabus which I was taught. So where is the difference? The difference comes into exposure. जो कॉलेज आपको अच्छा एक्सपोजर देती है वो कॉलेज अच्छी है. जो कॉलेज आपको एक्सपोजर नहीं दे पाती वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती कभी. सो बेसिकली वेयर आई थैंक माई कॉलेज द मोस्ट इज गिविंग मी द एक्सपोजर. मैं उनको कभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाने के लिए कभी थैंक यू नहीं कह सकता. दे आर ग्रेट, दे आर अमेजिंग एट इट, बट आई एम नॉट अ गुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली. तो आई थैंक देम फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर कोई आता है. मैकेनिकल इंजीनियर्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आता है, हर कोई हर फील्ड से आके रोबोट्स बनाता है या फिर कोई भी तरह की एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी करता है. सो दिस इज़ वेयर आई फाइंड माई सेल्फ वेरी मच फॉर्चुनेट विथ कि हाँ यहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला है. एंड दिस इज़ वॉट ट्रूली गुड कॉलेज शुड डू. You told me that you are a mechanical engineer, but at the end of the day, you liked something different. You pursued your career in something different. Yeah. Plus, you started your own, like your own startup in a completely different career. यार, I really don't understand. यार ये मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी जो कोर इंजीनियरिंग की जो डिपार्टमेंट्स है, इवन आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, being very very honest. तो ये why didn't you only pursue your career within mechanical? Why did you shift? क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? वेल आई बी वेरी ऑनेस्ट. एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जैसे भी मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, राइट, आई थॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत तो कोडिंग अच्छा आता होगा, होता होगा, पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत. देन आई रियलाइज कि यार आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर आई एम नॉट taught any programming language later on. Balki where my entire mindset in college was to solve problems. My mindset was never into learning some technical stack or some what do you call this, कोई मैकेनिकल ब्रांच को पकड़ के चलना मेरा मोटिव था ही नहीं कभी. मेरा मोटिव था यार एक प्रॉब्लम पकड़ता हूँ उसको सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ. सो बचपन से वही एक चीज़ रही है. व्हेन आई स्टार्टेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना आई सॉ दैट यार सिलेबस थोड़ा सा जम नहीं रहा. इट्स नॉट लाइक मेरे काफ़ी सारे अच्छे दोस्त हैं जो बहुत अच्छी कंपनीज में अभी प्लेस्ड है एज मैकेनिकल इंजीनियर्स, GETs एंड एवरीथिंग. वेरी वेरी ग्रेट ब्रांच, वेरी अमेजिंग, वेरी एवरग्रीन फॉर एवर. बट हियर्स द प्रॉब्लम, मैं खुद रेजोनेट नहीं कर पाता था भाई. So once I started learning mechanical, I hated it. I truly hated the 3 years of my life, 3.5 years of my life probably, except for the first semester. I loved first semester because वहाँ पे हमारा एक छोटा सा एक सब्जेक्ट था, शायद से कम क्रेडिट्स का था वो. It was called programming for engineers. Yes, I remember that. It was sorry, It yeah, was a nightmare. for you. I loved that subject यार. So मैं एक्चुअली कोर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा फ्रॉम माई स्कूल डेज. आई फील लाइक जो मेरी स्कूल में फंडामेंटल सिखाए थे मुझे प्रोग्रामिंग के, दे रियली हेल्प मी
into gaining that understanding of programming languages, जो मैं बाद में कॉलेज में एक्सपोज कर पाया. एंड आफ्टर गेटिंग दैट एक्सपोजर इन दैट कॉलेज, everyone understood my capabilities कि हाँ यार ये मैकेनिकल का बंदा है, इसको प्रोग्रामिंग आती है, so let's try to combine these things. ऐसे मेरा भी माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट होने लगा. Instead of hating mechanical engineering later on, I started going into those directions, and luckily I got really amazing faculties like Vinay Patel sir, Ashish Thakkar sir. These people I'm naming right now are people जिन्होंने मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट किया in combining mechanical and programming, because once my first semester was finished now, I was extremely depressed कि like भाई ये तो बहुत ही गलत जगह पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे फिर क्या करूँगा. बट देन इन फैकल्टी से बात हुई, उन्होंने समझाया कि हाँ इस तरीके से आप रोबोटिक्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. उसके बाद आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ रोबोटिक्स. My first motive was to get into automobile, by the way. Okay. Oh. And okay. Change of field again. Again, arey. So you see, I feel this is the reason I believe in destiny so much. जो भी मैं करना चाहता था लाइफ में वो नहीं किया, बट जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है. I don't know how, but so destiny is just moving me into some direction where मुझे नहीं पता कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, बट अपने आप वो चीज़ रेजोनेट हो जाती है जहाँ पे ले जाता है. सो आई वांटेड टू गो इनटू ऑटोमोबाइल. सो आई अप्रोच माय सीनियर्स. उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की. उस वक्त मीटिंग दो चीज़ों को लेकर एक साथ थी कि फर्स्ट हाफ में दे विल टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल बाहा कंपटीशन के बारे में, सेकेंड हाफ में दे विल टॉक अबाउट रोबोटिक सोसाइटी. मैंने सोचा हाँ ठीक है चलो बाहा का एक बार मैं सुन लूँगा, एक बार इनसे बात कर लूँगा, फिर मैं निकल जाऊँगा. दे सर हाँ ठीक है बाहा का एक बार सुन लो. मैंने कहा हाँ ठीक है मुझे इंटरेस्ट है, बाहा के स्टार्ट करते हैं. So if you could tell what is Baha? बाहा इज़ ऑटोमोबाइल कंपटीशन जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती है बाय कंट्री, पूरे कंट्री से सारे यूनिवर्सिटीज़. इट्स अ नेशनल लेवल कंपटीशन, ऑटोमोबाइल कंपटीशन. यस, पहले वो फ्यूल बेस्ड होते थे, अब इलेक्ट्रिक हो गई है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब हो चुके हैं, बट या concept is same. So you went into that level. I wanted to go into those things. Okay. So start किया था बाहा के फर्स्ट ओरिएंटेशन में. अनफॉर्चुनेटली मेरे सीनियर ने आया मुझसे बात की. उन्होंने कहा कि ठीक है बट तू बाहा पे सच में जाना चाहता है. मैं कहता हूँ हाँ जाना चाहता हूँ. बोलता है कि नहीं एक काम करना तू रोबोटिक्स को एक बार देख ले. Okay. तो मैं थोड़ा रहा सेमिनार वहाँ पे जो भी ओरिएंटेशन जैसा उन्होंने अरेंज किया था. सोचा कि हाँ बात कर लेते हैं, क्या है ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं मना करूँगा रोबोटिक्स का. बट देन उन्होंने कुछ बीच में कहा कि या दिस इज़ अ वेरी इंटरडिसिप्लिनरी एरिया जहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस सभी की रिक्वायरमेंट रहेगी. सो ट्राई टू गेट इनटू दिस. मैंने सोचा कि हाँ यार ये भी किया जा सकता है. व्हाट इफ़ वी डू समथिंग सिमिलर टू दिस ऑटोनोमस व्हीकल्स में अराउंड. तो मैंने उनसे बोला हाँ यार मुझे यहाँ पे भी रहना है, मैं दोनों में ही रह सकता हूँ, चलो मैं दोनों को ही अच्छे से कर लूँगा. तो बोलते हैं नहीं यार दोनों में जाना इज़ मुश्किल. Okay. क्योंकि आपका एक तो एकेडमिक्स एंड BVM इज़ काइंड ऑफ टफ, काइंड ऑफ नहीं सच में टफ है. यूजुअली हर यूनिवर्सिटीज़ में रहता है जब यू कम टू सेकेंड या थर्ड ईयर एकेडमिक्स टफ हो ही जाता है. सो उन्होंने वार्न किया कि नहीं यार दोनों में रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नहीं मैनेज हो पाएगा, हम सब ने ट्राई किया है, वी हैव रिग्रेटेड इट. तो मैंने बोला हाँ चलो सुन लेते हैं इनकी बात. So you were telling me that your seniors have actually played a very important role in your career, because मेरे साथ तो बहुत opposite हुआ है यार, being very very honest. Seniors have crowded my judgment. They told me to go in multi-directional fields. ये कोर्स करो, ये वेबिनार में जाओ, ये ट्रेनिंग कर लो, एक काम कर लो कोर्सेरा में चले जाओ, एक काम करो यूडेमी में चले जाओ. दे गिव मी मल्टी डायरेक्शंस. इवन दो आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, आई एम स्टिल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे दे पुश्ड मी इनटू अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन. तो आई जेन्युइनली फील कि ये सीनियर्स जो होते हैं ना, दे वांट यू टू डू व्हाट देयर आइडियोलॉजी इज. दिस वॉज वॉट आई हैड अ फोबिया ऑफ कि यार मैं सीनियर्स की अब तो बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं शायद 20 से 23 कोर्सेज ले चुका हूँ, लेकिन उसमें से मैंने एक भी ढंग से नहीं करी है. सो हैज दिस हैपेंड टू यू? बिकॉज आई एम गेटिंग टू नो अ वेरी डिफरेंट स्टोरी फ्रॉम यू. सो योर सीनियर्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ करियर इन रोबोटिक्स, इफ आई से. तो डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग इन द कॉलेजेस एज वेल? व्हाट आई प्रॉब्ली फेल्ड कि एम आई द ओनली वन हु हैज ओनली फेस्ड दिस? तो बहुत अपोजिट एक्सपीरियंसेस हैं हमारे. सो
मैंने मेरे सीनियर्स के जो भी कोर्सेज लिए थे, हाँ. आई हैव एक्सेल्ड इन दोज. Oh, great. रियली Great, लाइक great. उन्होंने कहा कि हाँ ये वाला कोर्स मत लेना, ये फैकल्टी के अंदर, दूसरे फैकल्टी के अंदर ये वाला कोर्स लेना. Seniors were really helpful. रियली you as हेल्पफुल यार. brothers. Oh, यस great. यस Oh, nice. यस, रियली अमेजिंग. सो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया रोबोटिक्स की जर्नी, मैंने फॉर्म फिल किया, सब कुछ कर दिया. नाउ देन केम द पार्ट के हाँ रोबोटिक्स चैप्टर खुला है कॉलेज में, चलो लेट्स ट्राई टू गेट इन्वॉल्व. द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज, चलो सबसे पहले क्या ही होता है, ग्राफिक डिज़ाइन की टीम होती है, डॉक्यूमेंटेशन की टीम होती है, उसमें ज्वाइन हो जाओ. Yes. सो आई जॉइन समवेयर, आई फॉरगॉट एग्जैक्टली मैं किस तरीके से ज्वाइन, आई थिंक वेब डेवलपर. आई जॉइंड एज अ वेब डेवलपर देयर. Okay. यस. Okay. Nice. सो मैंने फिर फर्स्ट ईयर में थोड़ा वेब डिज़ाइनिंग सीखा. एक्चुअली अगेन वेब डिज़ाइनिंग मैंने सीखा था स्कूल में. सो माई स्कूल वॉज वेरी एनकरेजिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एवरीथिंग. Okay. So schools में ही I had really amazing faculties, computer science, mathematics, physics, everything was taught really well. So school से ही वो journey begin हो चुकी थी computer science की. Even though like it was not visible to me in my college days. Okay. Yeah. So it was very later in my life. I think second या third year में मुझे पता चला कि हाँ यार मैं बेकार में मैकेनिकल में आ गया, मेरी calling actually कुछ और थी. Okay. So then I started questioning myself कि यार अभी मैकेनिकल करके करूँगा क्या, अभी मैकेनिकल हो तो चुका है, अभी चेंज नहीं कर सकते, थर्ड ईयर आ गया. सो चेंज करना विल बी इधर वेस्टेज ऑफ अ ईयर और समथिंग लाइक दैट, वापस एग्जाम्स कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, इतना तो फिर मुश्किल हो जाएगा. सो देन आई थॉट ऑफ वाई नॉट गेटिंग एन इंटर्नशिप विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डोमेन्स. सो अगर मेरा मोटिवेशन इज़ नॉट ओनली लाइक सिर्फ कंप्यूटर साइंस, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, मेरा मोटिवेशन कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, इवन इफ इट टेक्स टेंस ऑफ आवर्स इनटू इट कॉन्स्टेंटली, तो क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ. सो देन आई सेकेंड ईयर के एंड में वी हैव कंपल्शन कि इंटर्नशिप करनी पड़ेगी. सो आई गॉट एन इंटर्नशिप एट FSM IIT Delhi. Oh, great. Yeah. It's a research internship. Yes, it was research based internship. Yes, it was very tough यार. And the only motivation was like you know हम सब JEE देते हैं IIT में जाने के लिए. Absolutely. Yeah. So if I could pause you a little bit into here, there's a lot of people who really want to get into internships or research internships or get into any sort of like a experience based summer training or winter training with this IITs or any of the government based firms, right? What is the step that you took in order for your application, sir? If you could let me know that on a little bit, says that I could probably also relate, because I also tried to apply, but at the end of the day there was a lot of steps. There's a lot of proofs, there's a lot of documentations that you have to submit, you have to find out the right faculty for you, nahi to fir everything is idhar se udhar ho jayega. So if you could tell me ki how did you do that? Yes. So coincidentally I think a lot of my journey has been very fortunate. Okay. So हुआ ये कि जब I started with my internship journey ना, it began with I had two options. इधर IIT दिल्ली का एक एप्लीकेशन खुला था एंड दूसरा IIT रोपर का एप्लीकेशन खुला था. ऐसे ही हर जगह खुलता है, like by the way anyone can look into the internet and you will see that every summer each IIT or most of the IITs will open up research internships or internship positions. When does it exactly happen with you? Well, let's say अगर 2 month वो लोग एप्लीकेशंस लेते हैं, 2 months. So I am guessing मार्च के अराउंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकता है. Okay. Yeah, differs a lot depending on कब से वो समर ब्रेक स्टार्ट हो रहा है, बट मार्च के अराउंड यू कैन स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट. आई वुड सजेस्ट कि फेब्रुआरी से थोड़ा देखना स्टार्ट करो. कुछ IITs अर्ली एप्लीकेशंस भी ले लेते हैं. Not only IITs, I'm just saying IITs because वहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा. Any government institution, any institution, any company. कंपनीज़ का थोड़ा लेट रहता है अगर हम प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें, बिकॉज एक्सपोजर प्राइवेट स्टार्टअप्स में भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है. सो ट्राई टू लुक इनटू इट. मार्च अप्रैल के अराउंड इज़ अ ग्रेट प्लेस, ग्रेट टाइमलाइन टू स्टार्ट विथ, सर्च फॉर इट एंड ट्राई टू गेट इन टच विथ थ्रू लिंक्डइन, इंस्टाग्राम. उनके जो ऑफिशियल हैंडल्स हो, जैसे कि लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल ऑफ FSM IIT दिल्ली जहाँ पे मैंने काम किया है एंड जहाँ पे मैं स्टिल टच में हूँ कई लोगों से. So what their process is, they start their applications in March or April somewhere, and they take up applications. Every year thousands of applications come to them. Scrutinizing
स्क्रूटिनाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा सिमिलर रहता है हर IIT का. एंड फर्स्ट दे विल जस्ट स्क्रीन यू आउट इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफाइल, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए आपने. प्रोजेक्ट्स प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल बाय द वे. I'll be talking about that soon later on after some time. Yeah, sure. But let's take, you have good projects, basic projects भी चलेंगे, at least you have some confidence कि आपने ये project को showcase किया. That's the first thing. Projects के बाद they will take your aptitude test in terms of training देंगे, और उसके बाद उन training के basis पे भी आपको test देंगे. Okay. So you will have to clear several levels. First level का आपको test खत्म करना पड़ेगा, second level second week रहेगा. So इस तरीके से आपके 8 weeks में से 2 weeks आपके training period हो गए, बाकी के 6 weeks you become an intern there. So this is your 2 months internship timeline in IIT Delhi. FSM I did, and we usually ask students to do this. मैं वहाँ पे mentor भी रह चुका हूँ कई बार. Oh, great. Okay. So yeah, this is the process. So when did you find out like being a mentor also? Like this is a very different role altogether. Yeah. The art of teaching, the art of mentoring, the art of like giving and knowledge to someone, you need to have more than 100% of confidence within you in order to give knowledge to someone else also. So as a mentor, right, how did your journey start for you as a mentor? Like how did you start yourself? Like where did you think that ki giving knowledge is something that helps me, keeps me motivated, gives me the right confidence? Because ये भी होता है ना कि अगर मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो मेरी भी कॉन्सेप्चुअलिटी उतनी बढ़ रही है जब मैं आपको भी ये चीज़ें बता रहा हूँ. So where did that phase start? Well, it started again in school, by the way. So I am a believer कि आपका ना कैरेक्टर आपकी स्कूल डिफाइन करती है और पर्सनालिटी आपकी कॉलेज डिफाइन करती है. So आप स्कूल से भले PCM या CS ना सीखो, अच्छा एक कैरेक्टर क्रिएट कर देना, अच्छा एक कैरेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप कर देना स्कूल में, और बाद में कॉलेज में एक पर्सनालिटी बिल्डअप हो जाएगी. सो अगेन, सो लाइक मेरे जो कोर कॉन्सेप्ट है, मेरा जो कोर मेमोरीज है आपका वो है फ्रॉम स्कूल डेज इटसेल्फ. मैं स्कूल से ही काफ़ी मेरे पीयर्स को कोई कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ, मैं फिजिक्स में काफ़ी अच्छा था. सो मैं फिजिक्स पढ़ाता था लोगों को ऑन वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, sometimes 1-to-1 भी. Great. So I always had keen for teaching. Kind of fun fact, I don't know a lot of people know this about me. I took origami workshops when I was in my 4th class. Oh, great. Okay. Nice. So teaching का ना passion काफ़ी years से. Again, मैं नहीं देख पाया वो, काफ़ी later मुझे पता चला. Then I started that. फिर कॉलेज में I think मैं हॉस्टल में रहता था थोड़ा टाइम. इन कोविड टाइम में हॉस्टल में रहूँ काफ़ी, क्योंकि वी हैड टू डू काफ़ी सारे रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स. सो वी हैड टू स्टे देयर अराउंड द कैंपस. यस, उस वक्त मेंटरशिप, बट उस वक्त ऐसा था कि मेरा मंथली खर्चा लगभग 6-7 हज़ार के आजू बाजू हो जाता था अराउंड, या इन हॉस्टल खाना पीना सब कुछ. तो आई थॉट कि यार हर बार मम्मी पापा से क्या ही पैसे मांगने, तो लेट्स स्टार्ट विद सम सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम वर्क. सो वो मोटिवेशन था कि हाँ ठीक है, एक पार्ट टाइम वर्क देख लेते हैं. उस वक्त आई स्टार्टेड टीचिंग रोबोटिक्स एंड AI to students 1-to-1. I think I was in it was under Bangalore based company basically. सो उनके अंडर मैंने काम करना स्टार्ट किया. मैं रेगुलरली क्लासेस लेता था, मेरा खर्चा निकल जाता था दिन का, 2-4 दिन का थोड़े टाइम. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टीचिंग अगेन. सो स्कूल में इट वाज ओके, आई वाज टीचिंग, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये तो सब लोग कर देते होंगे. बट व्हेन आई स्टार्टेड इन कॉलेज ना, तब मुझे रियलाइज़ हो कि हाँ यार, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है ये काम करना. सो मेंटरशिप इज समथिंग दैट आई रीस्टार्टेड इन माई कॉलेज लाइफ, मजबूरी करके. लाइक मजबूरी तो नहीं, बट इट्स लाइक सोचा कि हाँ ठीक है, थोड़ा पार्ट टाइम हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी हो जाएगी, तो इसमें क्या ही बुराई है. सो वहाँ से स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर के बाद एज अ पार्ट टाइम. तो यस इट वाज फन यार. सो लाइक अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी लगती है, तो आप कोई प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दो सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से. बट इट्स बेसिकली जो भी आपकी कॉलिंग हो वो ट्राई टू परस्यू इट, ट्राई टू आइडेंटिफाई डूइंग मल्टीपल थिंग्स. किसी को सिखाना पसंद हो, किसी को सीखना पसंद हो, तो सीखो बहुत ज़्यादा. सीखना वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इनिशियली एंड उसके बाद देन बिकम द मास्टर ऑफ वन. सो आई बिलीव इन दैट, राइट? सो ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन केवलिया.
Let's talk about COVID. What impact did COVID had on your personal life and your professional life? Because things were different for different people. If you talk about me, it was very difficult for me to not go to college. I had a lot of memories with them, and I did not know कि मेरे को जाना कब है फिर वापस. ऑनलाइन अपन एग्जाम्स देते थे, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता था, लेकिन एट द एंड फोकस नहीं आ रही थी. नॉट एबल टू फोकस स्पेसिफिकली इन आर प्रोफेशनल कि करियर में करना क्या है. हाउ डिड यू टैकल कोविड, आप बताइए. वेल या कोविड का टाइम सबके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था. आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. इनफैक्ट इट वाज माय सेकंड ईयर व्हेन कोविड स्ट्रक. फर्स्ट सेकंड ईयर के बीच में हुआ था, मार्च 18th 2020. हाउ कैन यू फॉरगेट दैट. समवेयर उसी के अराउंड का कुछ टाइम था. सो इट वाज डिफ़िकल्ट. बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि भाई इतने ज़्यादा सपने थे कि ये करेंगे कॉलेज में आके, वो करेंगे कॉलेज में, करण जौहर की फिल्म्स देख के आए थे हम. तो ऐसा था कि अभी कन्फ्यूजन ये था कि घर पे बैठ के हम खुद की स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें. ऑफ कोर्स एज आई सेड कि स्टार्टिंग से एक एम था कि हाँ कुछ करके दिखाना है, पर एट द एंड कोई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाती है जिससे सब कुछ पॉज हो जाता है. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दो स्टफ एज वेल. सो इट वॉज़ वेरी डिप्रेसिंग टाइम फॉर मी एज वेल. घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं हो रहा था, बाहर जा नहीं सकते थे. सो इट वॉज काइंड ऑफ आई ट्राई टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव एज वेल. घर पे बैठे के क्या ही करेंगे. सो कॉलेज के भी ऑनलाइन लेक्चर्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे. आई डेल्व्ड इनटू समथिंग नोन एज मशीन लर्निंग एट दैट टाइम. वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था इनटू लर्निंग समथिंग. एंड हाउ डिड आई गो देयर. पहले तो यूट्यूब से देखा कि हाँ ठीक है कुछ यूट्यूब चैनल्स पे अच्छे वीडियोज़ हैं, बट लेटर ऑन आई केम अक्रॉस अ हैक जहाँ पे वी कैन गेट फ्री कोड कूपन्स फॉर यूडेमी कोर्सेज वॉट एवर. सो वो मुझे एक मिल गया, तो फिर आई स्टार्टेड विथ अ यूडेमी कोर्स फॉर फ्री यूजिंग दैट कूपन कोड समवेयर. एंड खुद को अपस्किल करना वहीं से स्टार्ट कर दिया था उसी वक्त. सो काइंड ऑफ दोज 1 year, that 1 year was very productive for me in terms of where things are going on. And काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उस वक्त. Of course I missed a lot of college days, but कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा, वैसा ही हो गया. सो स्टार्ट तो कर दिया ऑनलाइन लेक्चर्स देखना, ट्राई करना. द बेस्ट पार्ट दैट आई लर्न फ्रॉम देयर इज़ एक्टिव लर्निंग, जिसको हम कहते हैं. यू नो एक पैसिव लर्निंग होती है, लेक्चर पे बैठ के भी सिर्फ सर को देखते रहो, प्रोफेसर को देखते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा. पर एक बार आपने 5 मिनट का एक ट्यूटोरियल देखा, उसको साथ में इम्प्लीमेंट किया, तो कैसे तुमको सब कुछ आ जाएगा. राइट. सो उसी को एक्टिव लर्निंग कहते हैं और लेक्चर्स में पैसिव लर्निंग कहते हैं. आई रियली अंडरस्टूड इट दैट टाइम कि हाँ ऑनलाइन रहकर भी काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है. बिकॉज मुझे याद है मैं लेक्चर्स में ऑफलाइन रहता था एंड कुछ समझ नहीं आता था. इट वॉज टोटली पैसिव फॉर मी एट दैट टाइम, क्योंकि ना ही प्रोफेसर हमको एक हैंड्स ऑन दे पाते थे उस वक्त. लेक्चर पे बैठे बैठे क्या ही कितना ही कर सकते हैं. ऑफकोर्स ही इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट एक तरीके से कनेक्शन नहीं हो पाता था. बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन ना, यू हैव फ्रीडम कि हाँ इस स्टेप पे अगर मैं कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, कोर्स का ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे मैं तुरंत ही उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ. नेक्स्ट स्टेप पे नहीं तो एक नया विंडो पे कर सकता हूँ. राइट. सो एक तरीके से लर्निंग एक्टिवली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो मैंने इस कोविड के फर्स्ट सेकेंड मंथ में ही काफ़ी सीख लिया था, विच एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट माई कॉलेज एज वेल. And after college as well, I think active learning is really the key to my all the success. मुझे याद है मैं हमारे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स जो 3rd सेमेस्टर में हमारे स्टार्ट हुए थे, उसमें बहुत बार सोया हूँ. बहुत बार मेरे प्रोफेसर ने डांटा है मुझे. एक बार एक प्रोफेसर ने मुझे निशाचर बोल दिया था कि हाँ तू रात को जागता है, सुबह सोता है, ऐसा है ना तू. मैं कहा हाँ मैम वैसा ही कुछ है. तो इट हैपन. सो यू नो sometimes it's not about where you are learning from, the skills that you are learning, और उसको implement तुरंत करोगे, वो ज़्यादा important है यार. Great यार केवल. It is quite funny because and I feel nostalgic at the same point of time because बहुत बार हुआ है, being very honest, बहुत ही ज़्यादा बार हुआ है. एंड आदत ही बन गई थी, सुबह उठो, लैपटॉप खोलो, ऑनलाइन लेक्चर चल रही है, सो जाओ. So this is something that has happened quite a lot. But any which ways,
थोड़ा सा बात करते हैं इस पे. मैंने एक आर्टिकल में कहीं तो पढ़ा था, इसमें आई रेड इट, आई थिंक यू विल ऑल्सो रिलेट टू इट, कि हर साल, ठीक है, टोटल अराउंड 32.8 lakh plus people appear for engineering colleges to study engineering. Okay, but simple सी बात है, if you want to study engineering, you obviously want a job or you want an internship or you want to make your career also in engineering. But you know what the reality is? Only 10% of them, कि less than 10% of them pursue their jobs in the field of engineering. बाकी सारे मास्टर्स चले जाते हैं, नहीं तो एमबीए कर लेते हैं, नहीं तो कुछ और करते हैं, नहीं तो खुद की स्टार्टअप खोलते हैं. बट why do you think this is happening? Like, I need your perspective because I read it in an article. It can be completely wrong, but is this really the reality at the moment for all the engineers? Well, I totally agree with you and it is. आप स्टैट्स को नहीं, अपने आसपास देख लो. आपके खुद के वीडियो एडिटर्स क्या है, वो इंजीनियर्स है. आप सीईओ, आप भी तो इंजीनियर हो, राइट? एज अ स्टार्टअप फाउंडर एज वेल, आई एम एन इंजीनियर. So you see, engineers are not only about engineering. Mechanical engineer मतलब क्या करते रहोगे? नहीं ना. Computer engineer मतलब यही करना? नहीं. Engineers by the core are basically problem solvers. We see a problem, we want to solve it immediately. That's what our core nature is. Now here's the problem with a lot of colleges, institutes, universities throughout the country. कोई एक नाम नहीं है. पर हर किसी का ना एक पर्टिकुलर रिजिड ऑर्थोडॉक्स पर्सपेक्टिव है कि हाँ यार, पिछली बैच ये पढ़ के सक्सेसफुल हुई थी, ये बैच भी यही पढ़ के सक्सेसफुल होगी, अगले 20 साल तक यही सक्सेसफुल होगा, अगले 40 साल तक यही सक्सेसफुल रहेगा. वेल, एलुमनाइज आएंगे, बोलेंगे हाँ यार ये तो हमने भी पढ़ा था, तुम अभी भी पढ़ रहे हो, हम तो ये यूज़ ही नहीं करते हमारी कंपनी में, राइट? तब जाके उनकी आंखें खुलती है, अगर खुलती हुई भी है तो, राइट? So I feel that a lot of these details in terms of syllabus, you should keep it updated with synchronization with the industries. Industries में क्या relevant है, अगर आप वही नहीं सिखाओगे तो पास आउट होने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे? कंपनीज के पास जाएंगे, अपना रेज्यूमे देंगे, रेज्यूमे ATS स्कोर भी नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके रेज्यूमे में वो स्किल्स भी नहीं है जो ATS स्कोर भी पास कर पाए. समझ रहे हो? सो स्किल्स की बात छोड़ दो, चलो आपने वो काम नहीं किया, आपने वो सीखा ही नहीं जो कंपनी मांग रही है. नो कंपनी वॉन्ट्स कि लाइक चलो आज बच्चा आया है हमारे पास, हम 6-7 महीने की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद करवाएंगे. अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज डू, ऑफ कोर्स, इफ़ यू आर लकी, अगर आपका प्लेसमेंट हुआ तो. अगर आपको वो कैपेबल समझे कि हाँ ये बच्चा ये बंदा या कोई भी लड़की ये चीज़ सीख पा रही है, तब जाके दे विल हायर देम. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एवरीवन वांट्स कि हाँ अगर कोई कॉलेज हमको स्टूडेंट दे रहा है तो स्टूडेंट हैज़ टू नो समथिंग, उसको आना चाहिए. अगर फ्रंट एंड का काम है तो फ्रंट एंड उसको आना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं उसको 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड दूँ, ट्रेन करूँ फ्रंट एंड के लिए, तब तक तो भाई मेरी फ्रंट एंड की डिज़ाइन हो जाएगी, मेरे सेल्स वाले बंदे आ जाएंगे. नो वन. सो यू सी कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? पीपल आर नॉट स्किल्ड इनफ. एंड इसमें गलती शायद से इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों की कोलैबोरेशन के बीच की गलती है. ये दोनों के बीच में कनेक्शन कई बार टूट जाता है. जैसे ही वो ब्रेक होता है ना, वैसे ही थिंग्स ब्रेक अपार्ट. And talking about engineers here, one funny thing, from our first year till probably third year of college, being an engineer myself, मैंने वो ऐसी चीज़ें भी सीखी है कि वो हर चीज़ सीखी है तो शायद मैंने सोची भी नहीं होगी कि इंजीनियरिंग में ये सब भी सीखना पड़ता है. आई वॉज ऑब्वियसली फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग. मैंने सोचा था कि स्टार्ट भी वहीं से ही करूँगा. मेरे को थोड़ी पता था कि अब मेरे को वेल्डिंग करनी पड़ेगी. मेरे सेकेंड ईयर में बायोलॉजी था, एक तो योगा का भी उन्होंने डाल दिया था. और ये सारी की सारी चीज़ें ना इंजीनियर्स में इतनी सारी कॉमन क्यों हैं? तो ऐसे ही लगता है कि इंजीनियर्स को सब कुछ आता है इंजीनियरिंग के अलावा. यस यार, एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी कहाँ इंजीनियरिंग इतना अच्छे से सिखा रही है. अगर आज मैं सिलेबस खोल के दिखाऊँ आपको तो कई जगह पे आज भी असेंबली लैंग्वेजेस मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है. आई एग्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसी सारी चीज़ें, वैसे सब्जेक्ट्स भी. बट भाई थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो कि अभी रेलेवेंस क्या है. अगर आप C++ पढ़ा रहे हो, पाइथन नहीं पढ़ा रहे हो पूरी
पूरे कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी के पूरे सिलेबस में अगर आपके कहीं पे भी पाइथन नहीं है, डेटा साइंस के रिलेटेड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप सिर्फ चाहते हो कि लोग C++ या वेब डेवलपमेंट पढ़ ले और उसके बाद पास आउट हो जाए, एंड दे विल बी आउटडेटेड। क्योंकि आजकल तो मैं ChatGPT से भी वेबसाइट बनवा देता हूँ, राइट? उसको स्क्रीनशॉट दो और वो एग्जैक्ट रेप्लिका दे देगा, और समवेयर क्लोज टू रेप्लिका। और थोड़ी बहुत तो वेब डेवलपमेंट आती है मुझे, मैं खुद ही क्यों ना कर लूँ, मैं किसी को हायर ही क्यों करूँ? सो स्किल्स का जो फैक्टर है वो मिसिंग है कई जगह पे। स्किल्स के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, यूनिवर्सिटी थीसिस, सब जगह पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप एम्प्लॉयबल बन पाओगे। एम्प्लॉयबल एम्प्लॉयज़ नहीं है हमारे पास, एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, आपने कहा कि 32 lakhs प्लस, आई एग्री विद दैट फैक्ट, पर उसमें से शायद से 3.5 या फिर 3.2 lakhs ही शायद एम्प्लॉयबल होंगे, 10% जितने, राइट? सो अगेन, जैसे कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स कुछ और है और कॉलेजेस कुछ और पढ़ा रही है, जो बीच का गैप है ना वो वाइड होता जा रहा है इंस्टेड ऑफ श्रिंकिंग इट। वाई? बिकॉज एक तरीके से कॉलेजेस थोड़ी सी स्टबन हो रही है और एक तरीके से इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। इंडस्ट्री का इवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? सो उस हिसाब से जिस स्पेस पे इंडस्ट्री ग्रो कर पा रही है, जिस स्पेस से इंडस्ट्री ग्रो करना चाहती है या कर भी रही है, उस स्पेस से हमारा सिलेबस वाइड नहीं हो रहा, वो गैप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उस गैप को क्लोज करना पड़ेगा। ग्रेट केवलिया, अंडरस्टैंडिंग कि हमारे दोनों के बीच में एज इंजीनियर्स इतनी सारी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि मेरे को अकेले को लगता था कि यार इट इज ओनली विथ मी, बट हियरिंग फ्रॉम यू एज वेल एज अ मेंटर एंड एज अ फाउंडर एज वेल, इट फील्स दैट कि आई वाज नॉट अलोन, राइट? बट एनी विच वेज, नाउ let us go a little bit deep into robotics, understand a little bit about how AI and robotics are together, because that is exactly what your expertise is, right? So, okay, tell me something about how is robotics evolving in India? We all know the meaning of robotics. It is very very simple. आप गूगल कर लो, आप चैट जीपीटी से भी निकाल लो, आपने अभी अभी बोला, हर जगह आपको डेफिनेशन तो मिल जाएगी, लेकिन एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग में जब आपको आपके सीनियर ने बोला था कि व्हाई डोंट यू गेट इनटू रोबोटिक्स, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट केम इन योर माइंड देन about robotics? And right now, after you have pursued an entire career in robotics, what is your thought right now? With these similarities, how did you start with your career in robotics, specifically in India? Well, this is great time to be alive in India, by the way, in terms of robotics and AI. इस तरीके से हमारा मार्केट का शिफ्ट हो रहा है ना, फ्रॉम बेसिक ऑटोमेशन टू रोबोटिक्स। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। There are a lot of companies working on self-driving cars. There are a lot of companies working on automation. Adverb ले लो, Adverb is great at automation. काफ़ी सारी companies हैं जो robotics को as a core concept लेकर कुछ build कर रही है। In terms of automation industry itself, robotics in India is more of an extension of automation, not independent from automation. So fiction से non-fiction का transition चल रहा है अभी। हम पहले सोचते थे रोबोट्स का मतलब ह्यूमंस जैसे दिखने वाले रोबोट्स, बट ऐसा नहीं है। नाउ इट इज़ मोर ऑफ व्हील्ड रोबोट्स, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, ऑटोनॉमस एरियल रोबोट्स, अंडर वाटर रोबोट्स, प्रोस्थेटिक लिम्स, ऑल these sectors are basically where robotics is evolving a lot. I feel सर्विस सेक्टर जहाँ पे है, जैसे कि प्रोस्थेटिक लिम्ब हो गया, सर्विस सेक्टर जहाँ पे है जैसे कि ऑटोनॉमस व्हीकल्स हो गया, यहाँ पे इंडिया का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट रैपिड है एज ऑफ नाउ। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, देयर आर फ्यू कंपनीज आई नो विच आर डूइंग रियली वेल। आई फॉरगॉट हिज नेम, आई थिंक Samatvam or Satvam or something. Just look into it, I'm so sorry. But yeah, they are doing a great job into working into building self-driving robots, self-driving cars basically in India. And आपको पता है it's very difficult to build self-driving cars in India because roads are very much different from Western world. So it makes a lot of difference कि जब आप Indian problems solve कर रहे हो, Indian problems are much more different than US problems or Western culture. Germany ले लो, US ले लो. The thing is, हमारे यहाँ ना एक जिद है कि employability कम नहीं होनी चाहिए, employment rate कम नहीं होना चाहिए, but still robotic automation होना चाहिए.
जो बिल्कुल इंडिया इज़ डूइंग रियली वेल इन माई ओपिनियन सो फार. India is able to automate well by even deducting any kind of unemployability. जितने ज़्यादा रोबोट्स बन रहे हैं उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है. ऑटोमेशन से किसी को जॉब लॉस हुआ हो अभी तक तो मुझे नहीं पता, प्रॉबेबली हुआ हो, बट इट्स वेरी लो इन इंडिया, विच इज़ contrary to what is happening in the Western world, which I love about India right now. India में we are encouraging jobs, we are encouraging startups into building robots so that employability भी बढ़े, automation भी हो, established companies का efficiency भी बढ़े. So this is where I think India is heading right now. It's in a very positive direction as of now. Let's see where it goes in few days. अभी AI की थोड़ी बात कर लेते हैं. AI and robotics combination. AI and robotics are made for each other combination, आप कह सकते हो, लाइफ पार्टनर्स जैसा. बिकॉज अगर आप AI को इंडिपेंडेंटली लो, अगर मैं कहूँ गो गेट अ कप ऑफ टी फॉर मी टू ChatGPT, कोई रिस्पॉन्स नहीं. इट वोंट बी एबल टू. इट्स जस्ट वेरी सॉफ्ट मटेरियल. आप इसको कंटेंट दे सकते हो, लाइक ठीक है मेरे लिए ये कंटेंट क्रिएट करके दे दे, मेरे लिए ये फोटो क्रिएट करके दे दे, लोगो जनरेट करके दे दे. बट रियल वर्ल्ड टास्क where we really want a robotic automation is here, right? आप खुद से वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोना चाहते, आप चाहते हो कि वो चीज़ ऑटोमेट हो जाए, कोई और हमारे लिए कपड़े धो दे. आप ये नहीं चाहते कि आप नहीं चाहते कि खुद से खाना बनाए, आप चाहते हो खुद से कोई कोडिंग कर लो, खाना कोई और बना ले, वो चीज़ ऑटोमेट हो सकती है. सो यू सी, दिस इज़ वेयर नेचुरल लैंग्वेज एंड रोबोटिक्स और AI comes into picture with conjunction with robotic applications. This is where I think application-based robotics is heading. I heard this quote somewhere. It's very popular. I'll just translate it in Hindi. कि मैं चाहता हूँ कि कोई रोबोट मेरे लिए चाय बनाए, मेरे लिए कपड़े साफ करे, मेरे लिए मेरा सारा काम कर दे, so that मैं खुद ड्राइंग कर पाऊँ, ऑथर राइटिंग कर पाऊँ या फिर पोएट्री लिख पाऊँ, राइट? मैं ये नहीं चाहता कि रोबोट मेरे लिए पोएट्री लिखे, ड्राइंग कर ले ताकि मैं कपड़े धोने जाऊँ, राइट? सो हमारा डायरेक्शन फिलहाल कंटेंट साइड ज़्यादा है. वी आर स्विचिंग एंड दैट स्विच इज इंपॉर्टेंट एंड कैन ओनली बी डन विथ रोबोटिक्स. सो दिस इज वेयर वी आर हेडिंग एंड इट्स पॉजिटिव साइन, आई गेस. All right, Kevila, that was amazing answer for sure. मेरे को एक बात बताइए, if a person is currently starting, अभी करियर बनाना है उनको, कि अभी इंटर्नशिप करनी है, कि अभी जॉब करनी है, राइट? मान के चलिए कि वो करियर अभी जस्ट शुरुआत कर रहे बाय गेटिंग इनटू द कॉलेज, ठीक है, फर्स्ट ईयर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट शुड बी द आइडियल रोड मैप ऑफ अ स्टूडेंट हु जस्ट गॉट इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ हिज और हर इंजीनियरिंग कॉलेज? शुड दे हैव अ लॉट ऑफ फन, एंजॉय करनी चाहिए कॉलेज लाइफ, क्योंकि बस एक ही तो लाइफ है, राइट? कि स्टार्टिंग से शुरुआत करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कहाँ से करनी चाहिए? अगर दिमाग में ये है कि मुझे आइदर रोबोटिक्स में नहीं तो मुझे AI में कुछ ना कुछ करना है, अंडरस्टैंडिंग दैट ही और शी इज फ्रॉम अ कोर इंजीनियरिंग फील्ड, मान के चलिए कि वो स्टूडेंट ना मैकेट्रॉनिक्स का है, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आइडियल रोड मैप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक? अगर आप कॉलेज में आए हो, यू वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट? ये आपका पर्सनल गोल होना चाहिए बेसिकली. अभी अगर आपका सच में गोल तारक मेहता ही है तो वो देखो. अगर आपका गोल सच में कुछ बनना है, कुछ करना है, अपनी खुद की इंटरनल कॉलिंग को समझो एंड ट्राई टू मेक एक्शंस इन दैट डायरेक्शन. वो सही होंगे, गलत होंगे, कोई बात नहीं, आइटरेट करो. दिस इज हाउ वी बिल्ड आवर स्टार्टअप्स एज वेल, राइट? कि ठीक है ये काम नहीं कर रहा, कुछ और ट्राई करता है, वो काम नहीं कर रहा, तीसरी चीज़ ट्राई करता है. आइटरेशन इज द प्रोसेस विच गोज ऑन एंड ऑन फॉर एवर. एंड परफेक्शन हम कभी एम नहीं करते. परफेक्शन को रीच करना हम एम करते हैं कि हाँ यार उस परफेक्शन की डायरेक्शन तक जाना है, परफेक्शन एम नहीं करते. हैव यू सीन दोज पॉटर्स जो घड़ा बनाते हैं, राइट? हु टेक अ क्ले एंड ट्राई टू मेक सम बोल आउट ऑफ इट या फिर वाज आउट ऑफ इट. सो ट्राई टू कंसिडर योर लाइफ लाइक दैट क्ले एंड यू आर द पॉटर ऑफ योर ओन. आप अपनी लाइफ खुद शेप करो एंड ट्राई टू सी कि आप किस शेप में अच्छे लगते हो खुद को. ट्राई टू बिल्ड योर लाइफ योर सेल्फ. किसी और के हाथ में देना कि हाँ ठीक है आज शाम को एक नई मूवी आई है, चलो देखने जाते हैं, असाइनमेंट भले डेडलाइन आज रात की है, हम मूवी देखेंगे, असाइनमेंट जाए भाड़ में, नहीं.
सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, पर जैसे आप शेप करोगे खुद को, आप वैसे ही बनते जाओगे. वंस यू हैव स्टार्टेड योर कॉलेज जर्नी, दिस इज़ वेर यू शेप योर लाइफ. स्कूल तक योर पेरेंट्स शेप्ड योर लाइफ अ लॉट. आपके पेरेंट्स ने आपके काफ़ी सारे डिसीजन लिए होंगे, शायद से आपकी इंजीनियरिंग का भी डिसीजन उन्होंने लिया होगा, बट अब से आपकी डिसीजन आपको खुद लेनी पड़ेगी. आप नहीं लोगे और किसी और को दे दिया आपने, अपना डिसीजन पावर आपने किसी और को दे दी, तो शायद से आप अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाओगे जो आप खुद करना चाहते हो या फिर जिसके लिए आप बने हो. खुद को सर्च करो, ट्राई करो डिफरेंट चीज़ है. जो आपका लाइफ है उसमें लर्निंग की इंपॉर्टेंस रखो. ट्राई टू लर्न more and more things, whatever feels like doing for you. Great. Okay. Great. All right. Moving on, Cavalier, to the next question. Adding on to this previous question itself, you told me a very beautiful answer about how first years and second years should, have a great impact in their college by, enjoying, being free, but also studying, not missing a deadline. See, you have to be serious in your life, right? What if we take a situation where you're already in your 4th year of college? अब आपने ना 3 साल ना बस एंजॉय किया है, ठीक है, आपने मस्ती मारी है, आपने एंजॉय किया है, लास्ट मोमेंट है, 6 महीने बचे हैं, ओनली 6 months लेफ्ट कि प्लेसमेंट्स को बचे हैं, एंड ओनली 6 months लेफ्ट फॉर यू टू क्रैक अ गुड जॉब, सपोर्ट योर फैमिली एंड डू सम थिंग्स ऑफ योर ओन. यू आर सीइंग दैट योर कॉलेज क्लासमेट्स जो आपके साथ हंसी मजाक कर रहे थे वो लोग की प्लेसमेंट हो गई है, लेकिन आप बचे हुए हो. What do you think a person should do if he or she wants to focus in any sort of a career, specifically to mechanical, specifically to robotics, specifically to AI, okay, in the time period of 6 months? What should be the exact roadmap? अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. यार 6 months काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है अगर आप डेडिकेशन से करो काम, कुछ भी, वट एवर यू लाइक. 6 months, 3 months इज़ अ रियली गुड टाइम. And try to dedicate yourself into building your skills कैसे बनाओगे. So try to build your entire portfolio around your goal. For example, let's take an example of मुझे Adverb में जॉब चाहिए. Adverb is one of the biggest companies in robotics. इंडिया में सब जानते हैं Adverb को. सो मुझे किस तरीके से खुद को मोल्ड करना है कि मुझे एडवर्ब पे एटलीस्ट इंटर्नशिप मिल जाए, एटलीस्ट मैं वहाँ पे अपना रेज्यूमे दिखा पाऊँ. आई फर्स्ट गो अहेड एंड सी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके पास कैसे इंजीनियर्स हैं, उनके इंजीनियर्स काम कैसे करते हैं, हाउ टू डू दैट. उनका करियर्स पेज है, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल है, सी उनके जो एम्प्लॉयज़ है लिंक्डइन पे, हाउ आर दे प्रेजेंट, व्हाट डू दे डू. Try to get in touch with them. Networking is also important sometimes, but we'll talk about networking someday later. But नेटवर्किंग कर ली, देखा कि समझा कि कंपनी के गोल्स क्या है, व्हाट डू दे रियली वांट. ट्राई टू बिल्ड योर एंटायर पोर्टफोलियो अराउंड दैट पार्ट. ये चीटिंग नहीं है यार. लोग समझते कि नहीं यार ये सिर्फ एक ही कंपनी को मैं सेंटर पे रख के करूँगा तो बाकी कंपनीज मिस हो जाएगी, बाकी कंपनीज को बुरा लग गया तो भाई नहीं सोचता कोई कंपनी तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, ठीक है. तुम जिस कंपनी के बारे में सोचते हो उसके लिए 100% दो एंड ट्राई टू बिकम बेस्ट फिट फॉर देम. आप अपने आप कहीं ना कहीं फिट हो जाओगे बाकी कंपनीज पे भी. इमेजिन दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर अ जॉब इन एडवर्ब. बाई चांस अगर आपका रिजेक्शन आ गया, आरंट यू अ गुड कैंडिडेट फॉर अदर रोबोटिक्स कंपनीज. एबीबी के लिए नहीं जा सकते क्या आप? जा ही सकते हो. आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी रोबोटिक्स के अराउंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है 6 महीने के अंदर अंदर कि आप किसी भी रोबोटिक्स कंपनी को क्रैक कर पाओगे, इवन तो योर एंटायर गोल वॉज समथिंग एल्स. समवन रियली टोल्ड मी अ लॉन्ग टाइम अगो, शूट फॉर द स्टार्स, इवन इफ यू मिस यू आर स्टिल विद द मून. कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है एंड में. डो नॉट लूज होप. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा 6 month. एवरी डे आई टेल पीपल टू अप्लाई टू लॉट ऑफ कंपनीज विथ पर्सनलाइज रेज्यूमे एंड इसको ना आपको एक फुल टाइम जॉब के तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा आपका जॉब हंट को. सो जॉब हंट को अपने फुल टाइम जॉब की तरह ही ट्रीट करो. रोज़ के 6 से 8 घंटे देने ही पड़ेंगे. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. आपको एग्रेसिवली सबको मेल्स डालने पड़ेंगे, कोल्ड ईमेल्स डालने पड़ेंगे, एप्लीकेशंस डालनी पड़ेगी, खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना पड़ेगा. एवरीथिंग. एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट्स 50% प्रोजेक्ट्स, 40% इंटरव्यू एंड 10% रेज्यूमे. सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो फ्रेमवर्क है वो हर किसी में इतना ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, एटलीस्ट फॉर रोबोटिक्स इंजीनियर्स.
Okay, thank you so much Kevalia for that. It was indeed a lovely answer. For all those people जिन लोगों के पास बस 6 महीने ही बचे हैं उनको कुछ करना है. Now tell me something. Robotics and AI together कि अलग अलग होके भी it's a very big field, right? At the end of the day, what are the type of companies which are currently there in this field in India? Number one, point number one. Point number two, if you want to get into these companies, right, what type of softwares do you think you need to learn? What type of resume should you have? Like what type of experience should you have if you're just starting as a fresher based job in any of these companies, either in robotics or either in AI हो गया, ठीक है? And what should be your determination? Like what is the time period of you getting selected in one of those companies? I have heard कि लोग तो 2 से 3 महीने तक भी अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन 3 महीने 4 महीने के बाद भी उनको बस एक रिजेक्शन ही लेटर आता है, उसके पहले उनको कुछ नहीं बताया जाता है, even though they take such a long time. Well, there are a lot of companies in India as well. जैसे कि एडवर्ब ले लो, ABB ले लो, कूका ले लो, ओमरॉन ले लो, काफ़ी सारे ऐसे वेल नोन कंपनीज हैं. अपार्ट फ्रॉम दोज वेल नोन कंपनीज देयर आर सम स्मॉल स्केल कंपनीज एज वेल. आप गूगल पे सर्च करो, आपको काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाएगी. लिंक्डइन पे सर्च करो, बेटर है. तो कंपनीज का तो भंडार है. नाउ हियर्स वेयर आई कम इनटू द स्किल पार्ट. सबकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबको चाहिए क्या उनके आइडियल कैंडिडेट पे जो इंटरव्यू देने आए, जो अप्लाई करे? व्हाट डू दे रियली वांट? So there is no one size shoe that fits all here. So हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट है. किसी को मैटलैब चाहिए, किसी को सिमुलिंक मैटलैब चाहिए, किसी को रॉस चाहिए, किसी को लेट्स से एम्बेडेड सिस्टम्स चाहिए. हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट्स है. बट समथिंग दैट आई विल हाईली रिकमेंड एवरीवन who is applying to robotics jobs, robotic software engineers jobs, interns jobs, learn robot operating system ROS. ROS 1, ROS 2 जो लेना है ले लो. ROS 2 recommended, बट ROS को हाईलाइट में रखो. किसी भी हालत में ROS को इग्नोर मत करो. Even if you are going into hardware stuff, learn ROS. Even if you are going into software engineering, ROS is compulsion. Of course, I'm not saying कि हर कंपनी ROS यूज़ करती है. I am saying हर कंपनी जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी पर्सनलाइज्ड परपेचुअल सॉफ्टवेयर यूज़ करे, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ROS के साथ है. आपने एक डिफ़िकल्ट फ्रेमवर्क सीख लिया अच्छे से, आपको कहीं भी इजी जगह पे जाना इज़ सिंपलर. आपने मान लो C++ पढ़ लिया, जावा पढ़ लिया, पाइथन पे शिफ्ट होना कितना आसान है, जावास्क्रिप्ट पे शिफ्ट होना कितना आसान है. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लो तो आपको सब कुछ आ जाएगा. आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग में सीख कर, बहुत अच्छे से. दैट्स वेयर कम्स ROS एज वेल. ROS को सीख लो, आपको बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को आ जाएगी ऑटोमेटिकली, नहीं तो कम मेहनत के साथ. सो दिस इज़ व्हाट आई टेल एवरीवन कि ROS सीखो, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर पे जाओ, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग में जाओ. बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे कि चलो मैकेनिकल के लिए लेते थे, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, दे शुड ईदर लर्न क्रियो, फ्यूजन 360, सॉलिडवर्क्स, व्हाटएवर. किसी भी सॉफ्टवेयर, कोई एक सॉफ्टवेयर लो, पकड़ो, अच्छे से सीखो. वंस डन, दूसरे सॉफ्टवेयर सिमिलर है. इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट यू विल गेट एन आइडिया ऑफ इट. कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आप C++ में प्रोग्रामिंग करते हो, कम टू ROS. अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हो, कम टू ROS. ROS इज कंपैटिबल विथ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड ROS एक एक्चुअली फ्रेमवर्क है. इट्स नॉट अ लैंग्वेज और एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अ फ्रेमवर्क. जिसको आप समझ लिए, जिसको आप सीख लिए, तो आपको रोबोटिक कम्युनिकेशन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. एंड ये जो रोबोटिक कम्युनिकेशन है, ये हर कंपनी में सेम रहता है. भले ही ROS की जगह पे वो कोई और चीज़ यूज़ करे, रोबोटिक्स कम्युनिकेशन कभी चेंज नहीं होगा. कमिंग बैक टू रेज्यूमे पार्ट. रेज्यूमे में यू शुड ऑलवेज हैव कोर रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स, ईदर इन हार्डवेयर, ईदर इन CAD मॉडल्स और whatever. एंड स्पेशली अगर आप ROS यूज़ करते हो तो इट हैज़ टू बी देयर इन ROS. इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट पुटिंग दैम एज रिटन स्टफ. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ और हमेशा अपने कलीग्स को भी कहता हूँ, जो भी प्रोजेक्ट रखो अपने रेज्यूमे पे, उसको हमेशा गिटहब के साथ लिंक करो या यूट्यूब वीडियो के साथ लिंक करो. यूट्यूब वीडियो इज़ गुड बट गिटहब इज़ इवन बेटर, क्योंकि गिटहब की रीडमी पे भी आप वीडियो डाल सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की जा सकती है GitHub पे. So once someone lands into your GitHub profile,
they will have all the information about you, as well as your contribution to open source, as well as your contribution to ROS ecosystem, everything. So उनको एक GitHub से एक आइडिया आ जाता है. जैसे कि मैं खुद जब किसी को if I ask someone questions कि हाँ आप कहाँ से हो, कैसे हो, I'll just check their first LinkedIn profile and GitHub profile. ये दो चीज़ें प्राइम इंपॉर्टेंस के इन एनी रोबोटिक्स जॉब. GitHub more, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है ओपन सोर्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 50% प्रोजेक्ट हमने कवर कर दिया. नेक्स्ट इज 40% इंटरव्यू प्रेप. इंटरव्यू प्रेप पे आपके कोर सब्जेक्ट एज वेल एज कोर प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपने रॉस यूज़ किया, रॉस की जगह पे और कौन सी चीज़ें हो सकती थी. सो यू मे नॉट हैव यूज देम, बट यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट ऑल द रोबोटिक सॉफ्टवेयर दैट आर बीइंग यूज्ड. जैसे कि मैटलैब सिम्युलिंक इज रियली पॉपुलर दीज डेज. मैथवर्क्स का है वो, एंड VBots करके एक है. देयर आर सेवरल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स लाइक गजीबो, आरविज पे रोबोट विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. ये सारे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए. एंड इन सब के लिए आपको पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक अपने आप ऑस्मोसिस से हम अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं ला सकते. जब ऑस्मोसिस से इन्फॉर्मेशन आने लगेगी तब इट विल बी ईजी. बट अभी आपको अच्छे से, दिस इज़ वेयर यू गेट ए कॉम्पिटिटिव एज, राइट. बाकी लोग को नहीं पता, ये सब के बारे में पता ही नहीं है कि रॉस क्या है. आप रॉस के प्रोजेक्ट्स लेके बैठे हो. अभी आप मुझे बताओ आपको कॉम्पीट करेगा कौन, आपके कॉम्पिटिशन में ही कौन है. स्टैंड आउट करो, दैट्स इट. Very true. Great. Now, tell me something, Cavalier. According to you, what type of projects should a person do if he's subsequently right in the college, उसको robotics का एक चस्का चढ़ा है, ठीक है, and he would really want to explore the field of robotics a lot more. वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा? बिकॉज आपको तो पता ही होगा, स्कूल में ना वो लोग एक लाइन फॉलोअर रोबोट बोलते हैं कि रन करवाओ. वो कंपटीशन होती है जो हमने भी की थी. बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम इंडस्ट्री को भी देखते हैं, वी हैव आर्टिकुलेटेड रोबोट्स, वी हैव कोबॉट्स, we have robots which are bipeds, we have humanoid robots, we have different variations of robots, we have robotic drones, we have UAVs, these are also form of robots at the end. So we have different versions of robots that are currently there in industry, but these are not taught in the college or no one knows about it at the end. How should a student start with a project specifically in robotics and AI? एंड वो किस टाइप की वो प्रोजेक्ट वो किस टाइप की प्रोजेक्ट होनी चाहिए जिसके हिसाब से उसकी एक रेज्यूमे भी अच्छे से बनती है, एक प्रॉपर CV बनती है, जिससे उसको एक इंडस्ट्री में एडवांसमेंट प्लस उसकी करियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ही और शी कुड गेट इनटू एनी कंपनी लाइक दिस. वेरी गुड क्वेश्चन यार. द रीज़न इज, यू नो, दिस इज वेयर स्कूल एंड कॉलेजेस डिफर. स्कूल में आपको पॉइंटलेस रोबोट्स बनाने सिखाते हैं, बट दैट्स नॉट पॉइंटलेस एट दैट पॉइंट. आपको कॉन्सेप्ट सीखने उस वक्त. बट नाउ व्हेन यू आर इन कॉलेज ना, आप बड़े बच्चे बन चुके हो, आपको भी एप्लीकेशंस पे ध्यान देना है. आपको ढूंढना है प्रॉब्लम किधर है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, एंड ट्राई टू अप्रोच प्रॉब्लम्स, नॉट एनी प्रोजेक्ट्स. इवन दो आई सेड कि हाँ आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, दिस इज व्हाट आई मिस्ड आउट एट दैट पॉइंट. आई वांट टू ऐड के एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनो. सो जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो आई आस्क देम कि हाँ आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, आपने ये क्वाड्रूपेड रोबोट बनाया है, व्हाई डिड यू गो फॉर ओनली क्वाड्रूपेड रोबोट एंड नॉट फॉर AGVs और AMRs whatever, राइट. सो क्या एडवांटेज था क्वाड्रूपेडल रोबोट का ओवर ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल्स, राइट. 4-wheel रोबोट्स में क्या एडवांटेज, डिफरेंस क्या है दोनों में, और एडवांटेज क्या था क्वाड्रूपेड का, लोगों को नहीं पता रहता. उन्होंने कहीं से गिटहब से फोर्क की रेपो, थोड़े से छोटे मोटे चेंजेस किए, येलो का रेड कर दिया कलर, बन गया खुद का रेड स्पॉट. ऐसा नहीं चलता ना. सो दिस इज़ वेयर इट कम्स कि हाँ यार ये ना, दिस हमको एप्लीकेशन बेस्ड बनाना है. एप्लीकेशन ढूंढो. अगर आपको लगता है कि यू हैव सीन समवन, यू नो, लेट्स से इफ यू सीन विजुअली इम्पेयर्ड ऑन द स्ट्रीट समडे, ट्राई टू बिल्ड समथिंग फॉर देम. someone who needs hearing aid, try to build something for them. सर्विस बेस्ड जाओ, थोड़ा सा खुद को डाइवर्सिफाई करो कि हाँ अगर मैकेनिकल से मैं ये डिज़ाइन कर पाऊँ तो क्या मेरा दोस्त उस चीज़ को प्रोग्राम कर पाएगा,
क्या मेरा दूसरा दोस्त उस चीज़ को का इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन कर पाएगा, इम्प्लीमेंट कर पाएगा. सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी. एंड यहाँ पे आई से कि हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स carry a lot of weightage than your conventional projects like we discussed before. छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं करने, एप्लीकेशन देखो एंड रियलाइज करो कि आपने उस एप्लीकेशन में वही चीज़ क्यों यूज़ की. वंस यू हैव रियलाइज दैट, आपका काम हो गया. बाई चांस यू रिमेंबर दिस स्पॉट रोबोट ना, बीच में सैमसंग की वजह से पॉपुलर हो गया था. सो उसको ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. इट्स नॉट लाइक वन पर्सन विल मेक दैट एंटायर स्पॉट. दे विल हैव अ टीम ऑफ 3 or 4 multidisciplinary teams. One is mechanical, जो बॉट्स को डिज़ाइन करते हैं ऑप्टिमली. सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक्स, जो उन बॉट्स को एक ब्रेन देता है जिसको बाद में कंप्यूटर इंजीनियर्स प्रोग्राम करते हैं. दीज 3 इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज आर वेरी नेसेसरी किसी भी जगह पे. सो इसलिए मैं कहता हूँ रोबोटिक्स डिफ़िकल्ट इसीलिए क्योंकि ये एक ब्रांच नहीं है. आपको स्कूल में, कॉलेजेस में क्या सिखाता है कि हाँ आईसी इंजन पढ़ लेते हैं, पास हो जाओगे. बाद में क्या रेफ्रिजरेशन पढ़ लेंगे, पास हो जाओगे. पर भाई रेफ्रिजरेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स किसने किया? आईसी इंजन का ज़माना गया. अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन लाएगा इधर? वो बोलेंगे नहीं यार, ये तो इलेक्ट्रिकल वाले करते हैं. वो चीज़ रोबोटिक्स में नहीं कर पाएंगे हम. अगर किसी ने बोला कि आप मैकेनिकल के हो, आप कोडिंग नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे तुम अच्छे रोबोटिक्स इंजीनियर नहीं हो. फिर तुमको नॉलेज होनी चाहिए सब चीज़ की. दिस इज़ वेयर courses and different industrial exposure comes into picture. So इसीलिए ये कई बार interdisciplinary multidisciplinary जो टास्क होता है ना, वो इसलिए इतना एसेंशियल हो जाता है कि आपको हर डोमेन की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. एक में स्पेशलाइजेशन कर लो, कोई बात नहीं, नॉलेज हर चीज़ की रखनी पड़ेगी. इट्स नॉट एन ऑप्शन. तभी आप स्टैंड आउट करोगे. अगेन स्टैंड आउट करने का एक ही तरीका है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए और इम्प्लीमेंट की हुई होनी चाहिए, या फिर एक चीज़ को बहुत अच्छे से आना चाहिए. एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो आप, काफ़ी सारे आपको वर्ल्ड में मिल जाएंगे कि हाँ सभी लोग मैकेनिकल इंजीनियर में ऐसा कहते हैं कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज. सो ऑलरेडी मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज सीनियर टू यू. मैकेट्रॉनिक्स रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप खुद के एक प्लेस बना पाओगे, आइडेंटिटी बना पाओगे. When I also talk to quite a lot of students, right, when they have reached out to me over LinkedIn, or when they have talked to me face to face, they've asked me one simple question: sir, robotics का मतलब ही हार्डवेयर है. मैं सॉफ्टवेयर क्यों सीखूं? क्या मतलब है सॉफ्टवेयर सीख के? हार्डवेयर अगर कोई आप प्रोवाइड कर रहे हो, कि हार्डवेयर अगर मेरे को कहीं से आप बता दो कि कहाँ से आप प्रोक्योर करवा सकते हो, तभी जाके आई विल लव टू लर्न अबाउट रोबोटिक्स एंड रिलेटेड टू AI. नहीं तो सिर्फ फील होनी चाहिए ना. वो हार्डवेयर से वो फील ही नहीं होती. दे सी सम 1 आर्म रोबोट, 5 DOF रोबोट और 4 DOF रोबोट देखते हैं यूट्यूब वीडियो में, बोलते हैं कि मेरे को ये चाहिए. एट द एंड वी आर रेडी टू एक्सपेंड मनी, 35,000 40,000 रुपीज़ फॉर द रोबोट. हम ABB का भी रोबोट उठा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हार्डवेयर दो. डू यू ऑल्सो बिलीव दिस कि हार्डवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग रोबोटिक्स? कि डू यू थिंक एट द मोमेंट with the industry 4.0 coming in, where everyone is shifting from manual to automation, which is what you said, softwares and software simulation, software implementation is something that is very very important. What is your say? सॉफ्टवेयर सिमुलेशन एक अच्छा सा लेयर बन जाता है. आई विल नॉट से कि हाँ हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेंसिव है तो नहीं करो, ऐसा नहीं है. पर व्हेन यू आर अ बिगनर, व्हेन यू वांट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि सिमुलेशन से स्टार्ट करो. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनएक्सपेंसिव है. आपके पास जो लैपटॉप है, कंप्यूटर डेस्कटॉप है, उसी के अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी. बट आपको एक फिज़िक्स का फील भी आएगा कि आपका रोबोट रियल वर्ल्ड में कैसे काम करेगा. उसका एक फील आपको वर्चुअली आ जाएगा. इससे क्या होगा, आपका एक टेस्टिंग आ जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट टेस्टिंग, लेट्स टॉक अबाउट लर्निंग फेज. जब आप सीखते हो कोई चीज़, सच में आप 30, 50, 60,000 आप इन्वेस्ट करोगे. वॉट इफ 1-2 दिन इंटरेस्ट है, तीसरे दिन फ्लॉप हो गया सब कुछ, तो सब पानी में, राइट? तो वी डोंट वांट दैट. बेस्ट इज आपके पास जितने रिसोर्सेज है, ऑलवेज से आपके पास जितने रिसोर्सेज है उधर से स्टार्ट करो, फिर बिल्डअप करो, फिर आपको जो करना है करो. एक बार आप
एक पर्टिकुलर लेवल का नॉलेज गेन कर लो जिससे आप हार्डवेयर को हैंडल कर पाओ। हार्डवेयर को हैंडल करने की ताकत नहीं है, हार्डवेयर को लेकर सिर्फ देखना है कि हाँ यार ये अच्छा दिखता है, अभी मूड नहीं करने का, कभी मूड नहीं आएगा। और इनफैक्ट ओवरवेलमिंग फील होगा यार, इतना बड़ा 5D या 4D इनफैक्ट कोई भी तरीके का रोबोट खरीद लो, ओवरवेलमिंग फील होगा कि यार इतनी बड़ी चीज़ मैं कैसे कर पाऊँ। बेटर इज स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद सिमुलेशन स्टफ एंड देखो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप खुद से वो बना दोगे, पता चलेगा कि वो 30-35 हज़ार का था भी नहीं, ईजिली बन जाएगा। ठीक है, सो वो एक कैपेबिलिटी होती है एक सॉफ्टवेयर, रोबोटिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कि वो सिमुलेशन करता है एंड देन ही रियलाइजेस दैट इनटू द रियल वर्ल्ड। ये कैपेबिलिटी स्टार्टिंग से सीख लोगे तो काफ़ी सारा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा। वरना रोबोट को देख के डिप्रेस हो जाते हैं लोग कि वाह यार हाँ मर गए। नहीं, गलत है। थोड़ा सा इंक्लूड हो जाओ पहले रोबोटिक्स वर्ल्ड के अंदर, टर्मिनोलॉजी सीख लो, IK, FK मतलब इनवर्स काइनेमेटिक्स, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, थोड़े से बेसिक्स आ जाएंगे। उसके बाद यू विल गेट अ मच बेटर आइडिया और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा रियल रोबोट के साथ। वरना बोर हो जाओगे और बाद में वो इंटरेस्ट ही चला जाएगा रोबोटिक्स पे। दैट हैज़ हैपेंड टू मी बिफोर। मैं स्कूल में था, आई स्टार्टेड विथ रोबोटिक्स प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें मैंने मम्मी पापा से मंगवा ली कि हाँ ठीक है यहाँ से ले लेता है, और बाद में कुछ किया ही नहीं उसके साथ। तो होती है सबके साथ। बाद में 2-3 साल के बाद जब कॉलेज में आया तब एग्जैक्टली रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर सिमुलेशन करते हैं पहले, फिर रियल बनाएंगे, ऐसा ही किया था। All right, Kevalu. Now, I think we discussed a lot about robotics. We discussed about how your life has been. We discussed about what are the career options, what is employability. We discussed quite a lot of things that is really, really important for all our people to also know. Now, I think I would have missed out one question. Okay? The question is, I think everyone saw a lot of cartoons. है ना? आपने भी देखा होगा। मैं अभी देखता हूँ। आप अभी भी देखते हो? क्या बात, मैं भी देखता हूँ, मतलब देखता था, अभी तो पता नहीं, अभी तो टाइम नहीं मिलता। एनीवेज वेज डोरेमोन तो फेवरेट होगा आपका। हाँ। तो उसके पास एक टाइम मशीन थी बढ़िया वाली, ठीक है, वो एक एनीवेयर डोर था जो मुझे मस्त लगता था, और एक टाइम मशीन थी। बाय चांस मैंने आपको अभी सिचुएशन के हिसाब से आपको एक अभी टाइम मशीन दे दी, वही डोरेमोन वाला। मैं डोरेमोन नहीं हूँ तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, सॉरी। बट एनीवेज वेज एक सिचुएशन मान लेते हैं कि मैंने आपको एक टाइम मशीन दे दी। अगर मैं आपकी लाइफ एट द मोमेंट प्रेजेंट से 5 साल अभी रिवाइंड कर दूं और मैं आपको 5 years बैक वो जगह पे भेजूं जहां पे 5 years पहले आप थे, ये 5 years में ऐसा आपने क्या क्या चीज़ें किया है? What are the things that you have done in these 5 years that you, given a chance, could have changed? That's a good question. I only wish कि मैं थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देता। लाइक मुझे इतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिला। ऑफ कोर्स आई हैड सीनियर्स, आई हैड फैकल्टी मेम्बर्स देयर, बट वी वर ऑल लर्निंग टुगेदर। कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं मिला था मुझे स्टार्टिंग से ही कि हाँ यार ये हो जाता, ये कर ले तू, ये लाइफ सेट हो जाएगी, वो कर ले, ये लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। बट आई रियली विश कि हाँ अगर मैं पास्ट में जाता, मैं खुद को गाइड करता कि नहीं ये पढ़ तू, वो मैकेनिकल छोड़ दे, तू प्रोग्रामिंग पे ध्यान दे, तू ये चीज़ कर, तू ये रोबोट बना, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे। तो प्रायोरिटाइजेशन या फिर गाइडेंस खुद को गाइड कर देता। मैं जो आज करता हूँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ, वो मैं शायद से खुद पे कर देता कि हाँ यार खुद थोड़ा सा ज़्यादा आगे होता। ऑफ कोर्स अभी भी इट्स नॉट अ बैड प्लेस, बट स्टिल होती है ना थोड़ी सी लालच कि हाँ थोड़ा और अच्छा हो जाता। सो डू यू थिंक दैट कि इंडस्ट्री के बारे में जानना और इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी एक्सपीरियंस लेना इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ? अगर मैं आपको बताऊं कि अगर भी आप एक वर्किंग प्रोफेशनल पे हो, ठीक है, आपको ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में आप हो, ऑलरेडी आप एक अच्छी कंपनी में हो, अगर बाई चांस आपको शिफ्ट करनी है वो कंपनी कि अगर आपको एक ऐसी फील्ड में जानी है स्पेसिफिकली टू दिस फील्ड, लाइक रोबोटिक्स, AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग होगी, दिस फील्ड, डू यू थिंक दैट कि इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज पहले होने की ज़रूरत है जो शायद एकेडमिक से मिल नहीं पा रही थी? Well, yes, I agree. गैप तो है, as I talked about the gap between industry's requirements as well as
जो भी कॉलेजेस एकेडमिक्स वाले जो भी करते हैं. सो एक गैप जो है उसको फिल करना इंपॉर्टेंट है, एंड वो खुद से करना पड़ेगा. खुद से या फिर कोई प्रोग्राम से, कुछ ट्रेनिंग से, कुछ मेंटरशिप से, कुछ कोर्सेज से खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऑल इन ऑल, राइट. खुद से जब तक वो एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक तुम वो गैप फिल नहीं कर पाओगे. वो गैप फिल नहीं होगी तो आप पिछड़े रह जाओगे. वो पिछड़ा नहीं रहना, खुद को स्टैंड आउट करना है, खुद को एम्प्लॉयबल बनाना है, खुद को किसी भी कंपनी के लिए, चलो कंपनी नहीं तो खुद के लिए वैल्यूएबल बनाना है. तो मेहनत करनी पड़ेगी. तो गाइडेंस हो और वो मेहनत कर पाओ तो वो करनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर से करनी पड़ेगी. अगर आपका एक गोल है तो लग जाओ, आज ही लग जाओ. देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू एनीथिंग. गलती करोगे, मेंटर्स होंगे सिखाने को, तो सीख जाओगे. गलती नहीं कर पाओगे फिर, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंडस्ट्रियल एक्सपोजर. पहले से इंटर्नशिप जितना जल्दी हो सके लो. सेकेंड ईयर आई फील इज़ अ स्वीट स्पॉट, ताकि फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे से एक्सप्लोर किया है कि आपको कहाँ पे जाना है. सेकेंड ईयर पे आप इंटर्नशिप्स ले लो. इंटर्नशिप्स सर्च करना बहुत ही एग्रेसिवली ट्राई करो. मैंने देखा है काफ़ी लोग कोल्ड ईमेल्स से मुझे अप्रोच करते हैं, एंड इट इज़ टोटली फाइन. आई लव देम कि हाँ यार इसमें गट्स है, ये बंदे में गट्स है कि हाँ इसके पास जाता हूँ, किसी भी पोजीशन पे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको बोलूँगा कि मुझे ये चाहिए. तो एटलीस्ट ही इज़ आस्किंग फॉर समथिंग. मुझे अच्छा लगता है कोल्ड ईमेल्स को. मैं देखता हूँ काफ़ी सारे इंटर्नशिप एप्लीकेशंस आते हैं. वी ट्राई टू स्क्रूटिनाइज इट. एज अ मेंटर एट IIT Delhi FSM एज वेल, आई वॉज इन स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स. काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स को भी हमको स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन इज़ वेरी वास्ट. आप खुद ही सोचो, ऑल ओवर कंट्री से आते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस. किस तरीके से हम स्क्रूटिनाइज कर पाएंगे? एक पर्टिकुलर लेवल पे आके उनको ट्रेनिंग देना. इंडस्ट्रियल यार जब लोग आते हैं हमारे पास, उनके पास इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं होती, हमको ट्रेन करना पड़ता है. लेवल 1 लेवल 2 करवाने पड़ते हैं, तब जाके उनको थोड़ी सी एक्सपोजर मिले. बट वो हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर रहा. आज इंडस्ट्री में, आज एकेडमिक्स में भी कोई नहीं कर रहा. इंडस्ट्री और एकेडमिक के गैप के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि सब इतना मार्केटिंग में इतने ज़्यादा घुस चुके हैं ना कि नहीं हमारी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे है. नहीं है, नहीं है भाई, ठीक है. सो वो चीज़ किसी और को फुलफिल करनी पड़ेगी, आपको खुद को करनी पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी है वो. और एक गलती जो मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ करते हुए इज़ लाइक वो इंडस्ट्री को चेज़ नहीं करते. आई फील कि लाइक इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट टू लुक फॉर परफेक्ट और रियली गुड इंडस्ट्री प्रोग्राम्स योरसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप खुद से आपके पास नहीं आएंगे. इंडस्ट्रीज आर बिजी खुद का काम करते हुए. आपको खुद अप्रोच करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ रेलेवेंट चीज़ें मुझे सिखा रहा है. उन चीज़ों के पीछे भागो, उस नॉलेज के पीछे एग्रेसिवली भागो, राइट. पैसों के पीछे मत भागो. पैसे तो बाद में आ जाएंगे, इंटर्नशिप्स कर लिए, अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको फ्यूचर में, बट स्किल्स ही नहीं होंगे तो जॉब भी नहीं मिलेगी. स्किल्स के पीछे भागो, अपने काम के पीछे भागो, अपने हार्डवर्क को प्रायोरिटाइज करो, एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स कम इनटू पिक्चर टुगेदर. तब जाके आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाते हो जो किसी कंपनी में कोई वैल्यू प्रोवाइड करे. सो वो बनने की ट्राई करो, आइडियलाइज करो कि हाँ यार आइडियल केवल्य पंड्या के पास ये स्किल्स है, तो मुझे आज क्या मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँ. कौन मेरी वो हेल्प करेगा, कौन वो स्किल्स सिखा रहा है मुझे, क्या वो स्किल्स सच में इंडस्ट्री रेलेवेंट है या इंडस्ट्री रेलेवेंट नहीं है. क्या मैं खुद की मर्जी से ही जावा पढ़ रहा हूँ, अभी तो कॉटलिन का ज़माना आ गया, नहीं, राइट. तो उस तरीके से देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट कम इनटू पिक्चर जब आप एक इंडस्ट्री प्रोग्राम के बारे में बात करो, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करो. ट्राई टू सर्च फॉर द बेस्ट वन फॉर योरसेल्फ.